Hello friends, how are you all of you? I am Sheikh Muzaffar and I welcome you all in this today's beautiful session which is second shifting theorem with example. I will be quickly moving into this session. Just stick with me for the entire session. Let's write. Second shifting theorem. What is the statement in this case? If Laplace of f of t equals to f of s, then Laplace of f of t minus of a into u of t minus of a equals to e to the power minus as into f of s. क्या लिखा हूँ स्टेटमेंट? इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एस एफ ऑफ एस. So here at the unit step function, where unit step function u of t minus of a ये क्या होता है? So it becomes 1 when t greater than of a and 0 when t less than of a. What is the proof part in this case? So can I write, we have to prove this part equals to this, or you can prove this part equals to this. So can I write by given condition, Laplace of f of t equals to how much? So it becomes f of s. So can I write this part? It becomes, or we can write integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt equals to f of s. Can I write this line? This is the given condition. So here t greater than equals to 0. Here t greater than equals to 0. If I write in this manner, suppose f of s equals to, so can I write integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. Can I write this line? यहाँ पे राइट हैंड साइड था, यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया हूँ. अभी क्या राइट हैंड साइड मेरा क्या है? e to the power minus as into f of s. Can I multiply e to the power minus as? So multiplying e to the power minus as both sides, multiplying e to the power minus as both sides. So can I write e to the power minus as into f of s equals to how much? So can I write e to the power minus s, यहाँ पे किसका रेस्पेक्ट है? इंटीग्रेशन ले रहा हूँ t के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला टर्म अगर अंदर भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus st into e to the power minus as f of t dt. So can I write integration 0 to infinity? So can I write e to the power minus of, so can I write, so taking common s, so it becomes t plus of a whole into s into f of t dt. Can I change the variable? So here t plus a, so can I write therefore put t plus of a equals to p. So a is the constant, so can I write dt equals to dp. So यहाँ पे लिमिट क्या है? t का लिमिट है t इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी. इफ t इक्वल्स टू 0 तो लिमिट क्या आ जाएगा? if t equals to 0 then t अगर 0 होगा ताले then p का वैल्यू कितना आएगा? then p equals to a. if t equals to कितना है? इन्फिनिटी. if t equals to infinity ताले p equals to कितना आएगा? p आ जाएगा इन्फिनिटी. then p equals to
इन्फिनिटिव। तो मेरा लिमिट चेंज हो जाएगा, तो लिमिट क्या आएगा, इंटीग्रेशन p लोअर लिमिट कितना आएगा, p ऑफ a टू इन्फिनिटिव, तो क्या आ जाएगा ये e टू पावर द माइनस t प्लस ए पी है, e टू पावर द माइनस पी एस इंटू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ टी है, ताहले एफ ऑफ टी होगा तो क्या होगा, तो p माइनस ए, ताहले एफ ऑफ p माइनस ऑफ ए, सो dt इक्वल्स टू dp, so can I write dp? So do the numbering, suppose this part equals to 1, ये कितना आया, e टू पावर द माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस, ये कितना आ गया, ये टर्म आ गया। अभी मैं क्या करेंगे, ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड, सो कैन आई राइट नाउ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए, ताले कितना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ई टू पावर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी, यहाँ पे एफ ऑफ टी था इसलिए एफ ऑफ टी लिखा है, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए है, ताले एफ ऑफ टी का जगह पर मुझे क्या लिखना है, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो कैन आई राइट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ई टू पावर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए डी टी, लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये फंक्शन था इसलिए यहाँ डायरेक्ट ये वाला फंक्शन लिख दिया हूँ, एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए, यहाँ पे जो रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है। कैन आई राइट दिस लाइन? अभी मुझे क्या करना है, एक किसका लिमिट है, ये टी का लिमिट है, टी का लिमिट है, तो अभी मुझे क्या करना है, यूनिट स्टेप फंक्शन को ब्रेक कर देंगे। यूनिट स्टेप फंक्शन अगर टी का वैल्यू ग्रेटर देन टी का वैल्यू इफ टी लेस देन ए, तो क्या होगा, 0 से ए तक अगर टी का वैल्यू होगा तो इसको मैं दो लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे, सो ब्रेक कर देंगे। 0 टू ए में लिखेंगे 0 टू ए ई टू पावर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए, एफ ऑफ टी माइनस ए, ताले अगर 0 से ए लेंगे तब यू ऑफ टी माइनस ए कितना होगा, यू ऑफ टी माइनस ए होगा 0। यहाँ पे लिखा हो यूनिट स्टेप फंक्शन 0 से ए का अंदर टी का वैल्यू अगर रहेगा तब क्या होगा, यू ऑफ टी माइनस ए 0 आ जाएगा इंटू डी टी, ये टी का लिमिट है 0 टू ए प्लस फिर क्या होगा, टी का लिमिट ए से इन्फिनिटिव, ए से इन्फिनिटिव तक लिखेंगे। यहाँ पे देखो टी ग्रेटर देन ए से इन्फिनिटिव होगा तो यू ऑफ टी माइनस से कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे मैं 1 बिठा देंगे, पहले ई टू पावर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू 1 डी टी। यहाँ पे जो यू ऑफ टी माइनस ए, इसको एक बार 0 से ए तक जाएंगे, उसका वैल्यू कितना 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। मैं दो लिमिट में ब्रेक कर दिया हूँ, 0 से ए से इन्फिनिटिव, तो इसको जगह रिजॉल्व करेगा, ये रिजॉल्व हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो इसलिए मैं यूनिट स्टेप फंक्शन ये वाला टोटल टर्म 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग टोटल टर्म 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, 0 प्लस ऑफ ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी इक्वल्स टू ए टू इन्फिनिटिव ई टू पावर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए, एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। तो अभी यहाँ पे देखो, चलिए ये क्या आ जाएगा, फाइनली आएगा मेरा, फाइनली आएगा इंटीग्रेशन टी इक्वल्स टू ए टू इन्फिनिटिव टी इक्वल्स टू ए टू ई टू पावर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए, एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए डी टी। इसको डू द नंबरिंग, ये 2 नंबर दे दो, ये पहला वाला है फर्स्ट वन, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। सो Laplace of f of t minus of a, f of t minus of a, u of t minus of a. Can I write this line? So this part, if you compare 1 and 2 both are same. If you compare, यहाँ पे किसका रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहाँ पे p का रेस्पेक्ट में है और यहाँ पे देखो t का रेस्पेक्ट में है, लेकिन दोनों राइट हैंड साइड देखो, इसको ये p वेरिएबल है, यहाँ पे p का रेस्पेक्ट में, यहाँ पे p का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ पे t का रेस्पेक्ट है, देखें दोनों का लिमिट सेम है, ए टू इन्फिनिटिव। यहाँ पे p था इसलिए यहाँ पे ई टू पावर द माइनस पी एस है, यहाँ पे देखो एस है, ये कितना है एस है, ई टू पावर द माइनस एस टी, ई टू पावर द माइनस एस टी, देख लो अच्छा से। ताले एफ ऑफ टी माइनस है, यहाँ पे एफ ऑफ पी माइनस है, यहाँ पे देखो p का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था इसलिए p माइनस है, यहाँ पे t का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो t माइनस है। हम लोग जानते हैं, अगर मैं इस तरह से इसको लिखूँ, माइनस सिंस
सिंस माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर डी एक्स कहीं पे लिखा है, अगर कहीं पे ए भी रहे माइनस बी टू बी, लेकिन वेरिएबल चेंज किया हूँ, जस्ट वेरिएबल चेंज किया हूँ, सपोज एफ ऑफ वाई डी वाई, एफ ऑफ वाई डी वाई, तो दोनों केस में ये सेम आएगा। ठीक है, तब इसको क्या करें, फ्रॉम 1 and 2 देयरफॉर, फ्रॉम 1 and 2 देयरफॉर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए, सो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई टू द पावर द माइनस एस एफ ऑफ एस। सो प्रूव्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया है। तो यहाँ पे मुझे याद रखना है, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, ये कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस। इसको मुझे प्रूव करना है। तो मैंने पहले क्या किया, एफ ऑफ एस लिख दिया, जो फॉर्मूला था लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का, उसके बाद ई टू द पावर माइनस एस मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके बाद जो इंटीग्रेशन आ गया, ये वाला टर्म आ गया मुझे। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लिया हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वाला लेने से जो वैल्यू आया है, ताले 1 and 2 को अगर कंपेयर करोगे ताले सेम आंसर आ जाएगा। ताले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अभी इसको बेस्ड करके दो प्रॉब्लम करेंगे। So can I write find Laplace transform using second shifting theorem. Find Laplace transform using second shifting theorem. Using second shifting theorem. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है मेरा टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ 1, ये गिवन है, ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे, बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। वी नो दैट बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम कैन आई राइट, बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम वी कैन राइट, क्या होता है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए, ये कितना होता है, ई टू द पावर द माइनस एस एफ ऑफ एस। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हूँ और ये जो प्रॉब्लम गिवन है, नाउ कैन आई राइट लैप्लास ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ 1, ये गिवन है, ये प्रॉब्लम है मेरा। तो यहाँ पे जो मैं कंडीशन लिखा हूँ, फ्रॉम 1, इससे अगर मैं कंपेयर करेंगे, देखो यू ऑफ टी माइनस 1 है, यू ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी माइनस 1, यू ऑफ टी माइनस ए। चलिए यहाँ से मुझे पता चल जाएगा ए का वैल्यू कितना है, 1 है। हेयर ताले ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। इफ यू कंपेयर यू ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी माइनस 1, ए का वैल्यू 1 मिल गया है। अभी एफ ऑफ टी माइनस ए कितना है, टी है। देयरफॉर सो कैन आई राइट एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए, यहाँ पे देखो एफ ऑफ टी माइनस ए है, एफ ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू टी है, और यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू यू ऑफ टी माइनस 1 है। ताले ए का वैल्यू 1 मिल गया मुझे। ताले एफ ऑफ टी माइनस ए कितना है, टी है। इसको ध्यान से फाइंड करना है। एफ ऑफ टी माइनस ए है, टी है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो टी माइनस ए मुझे लिखना पड़ेगा, ताले टी माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ ए, कैन आई राइट दिस लाइन, ताले टी माइनस ए कैन आई राइट, देखो माइनस से प्लस से कैंसिल हो गया है। ताले मुझे क्या चाहिए, एफ टी चाहिए, तभी तो मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके इसको फंक्शन ऑफ एस फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ताले एफ ऑफ टी कितना आएगा, एफ ऑफ टी आएगा, मैंने टी माइनस ए रिप्लेस फॉर टी, टी माइनस ए रिप्लेस फॉर टी, सो कैन आई राइट टी प्लस ऑफ ए। व्हाट इज टी, व्हाट इज ए,
ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो फाइंड किया हूँ, ए का वैल्यू 1, सो दैट मीन्स ए बिकम्स 1. सो व्हाट इज एफ ऑफ एस? सो कैन आई राइट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस इक्वल्स टू कितना होगा, लैप्लास ऑफ टी कितना आएगा 1/a², लैप्लास ऑफ टी आएगा 1/a², लैप्लास ऑफ 1 आएगा 1/s, लैप्लास ऑफ 1 आएगा 1/s. स्टैंडर्ड फार्मूला से मैं लिख सकता हूँ. तो अभी मुझे क्या करना है, पहले मेरा फार्मूला डायरेक्ट में क्या लिखेंगे, दिस पार्ट इक्वल्स टू यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम. इसका फार्मूला क्या है, e टू द पावर द माइनस as f of s, e टू द पावर द माइनस as f of s. सो देयरफॉर तो इसको मैं क्या लिख देंगे, लैप्लास ऑफ t इंटू u ऑफ t माइनस ऑफ 1 यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम. व्हाट इज द फार्मूला, e टू द पावर द माइनस as इंटू f of s, e टू द पावर द माइनस as इंटू f of s. व्हाट इज a का वैल्यू कितना है 1 है, पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर द माइनस s, a का वैल्यू 1, देखो a का वैल्यू 1 लिखा हूँ, a का वैल्यू 1 लिखा हूँ, यहाँ पे बिठा दो, a का वैल्यू 1, तो e टू द पावर द माइनस s इंटू f ऑफ s का वैल्यू कितना है, ये वाला है, पहले 1/a² प्लस ऑफ 1/s हो गया. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो डायरेक्ट मुझे क्या है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लिखना है. व्हाट इज द स्टेटमेंट, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, उससे मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर देंगे, उससे मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ना फाइंड कर देंगे. सो कैन आई राइट, अभी मैं लिख सकता हूँ, राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन. कैन आई राइट, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट नोट यहाँ पे नंबर 1 में क्या था, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या था, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन क्या था, देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए. ये कितना लिखा था, ई टू द पावर द माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस. तो सेकेंड वन में क्या लिखेंगे, मैं अगर इन्वर्स ले लें, इफ लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस कितना आएगा, एफ ऑफ टी आएगा. देन क्या लिखना है, देन लैप्लास इन्वर्स ऑफ ई टू द पावर द माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए. ये फार्मूला यूज करके मुझे एक प्रॉब्लम करना है, ये फार्मूला यूज करके मुझे एक प्रॉब्लम करना है. राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड कैन आई राइट लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ. सो कैन आई राइट 4 इंटू ई टू द पावर द माइनस 2s बाई एस. यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम. तो इसको यूज करें, किस तरह से करेंगे, वी नो दैट दिस पार्ट इक्वल्स टू, व्हाट इज द सॉल्यूशन, दिस पार्ट इक्वल्स टू, इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, दिस पार्ट इक्वल्स टू कितना होता है, इसको मैं क्या लिखेंगे, देखो इसको नाउ कैन आई राइट लैप्लास इन्वर्स ऑफ, सो कैन आई राइट इन दिस मैनर 4/s, सो कैन आई राइट 4/s इंटू ई टू द पावर द माइनस 2s. कैन आई राइट दिस लाइन, व्हाट इज द फार्मूला यहाँ लिखा हूँ, ई टू द पावर द माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस, ई टू द पावर द माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस. इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लैप्लास इन्वर्स ऑफ ई टू द पावर द माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस, ई टू द पावर माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस. सो कैन आई राइट, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, ई टू द पावर द माइनस 2s, ई टू द पावर द माइनस एस, ताहले ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 2 आ गया, ए का वैल्यू 2. कैन आई राइट दिस लाइन, ताहले एफ ऑफ एस कितना आएगा, एफ ऑफ एस क्या है 4/s. सो हयर एफ ऑफ एस कितना आएगा, व्हाट इज एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस आ गया 4/s. व्हाट इज लैप्लास इन्वर्स, तो ये क्या है, एफ ऑफ एस क्या है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना है 4/s. सो एफ ऑफ टी कितना आएगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 4 कॉमन ले लो, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s, ताहले 4 इंटू 1
4 इंटू 1 सो इट बिकम्स 4। एफ टी हो गया कितना 4। एफ टी अगर 4 हो गया ताले एफ ऑफ टी माइनस ए कितना आएगा टी माइनस ऑफ ए। देखो ये वाला जो वेरिएबल है यहाँ जो मैं लिखा हूँ ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो पूरा सेम रहेगा। ठीक, ताले एफ ऑफ टी माइनस ए का वैल्यू 4 आ जाएगा। तब मुझे क्या चाहिए एफ ऑफ टी माइनस ए और यू ऑफ टी माइनस ए। देयरफॉर यू ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी माइनस ए, ताले टी माइनस ए का वैल्यू कितना होगा यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू कितना आएगा यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए का वैल्यू कितना है 2 है, यू ऑफ टी माइनस ए 2 आ जाएगा। तो अभी क्या होगा व्हाट इज द आंसर, देयरफॉर व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 4 बाई ई टू द पावर द माइनस 2s इंटू 4 बाई एस। ताले कितना आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए। ताले कितना आएगा एफ ऑफ टी माइनस ए, यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हूँ, एफ ऑफ टी माइनस ए कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, सिंस अगर मैं इस तरह से इसको लिखूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज एक्स प्लस 1, ताले एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कितना आएगा, एक्स का जगह पर एक्स प्लस 1 लिखा हूँ, तो जहाँ पे एक्स रहेगा उसी को चेंज करना पड़ेगा एक्स प्लस 1 और सब सेम रहेगा। ये वाला लिख सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टी माइनस ए है, ताले ये भी क्या है कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड, इसलिए इसका कोई चेंज नहीं होगा। ताले ये 4 आ गया और यू ऑफ टी माइनस ए कितना होगा यू ऑफ टी माइनस ऑफ 2, और यू ऑफ टी माइनस 2 कितना होता है, सिंस यू ऑफ टी माइनस ऑफ 2 यूनिट स्टेप फंक्शन, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है इक्वल्स टू 1 व्हेन टी ग्रेटर देन 2 और इक्वल्स टू 0 when t less than 2. So this is the required answer. If I take the another example, then it is clear. Can I write, if I consider the using unit step function, write down the question, if f of t equals to, if एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कितना होता है ई टू द पावर द माइनस टी, ई टू द पावर द माइनस टी, वेयर 0 लेस देन टी, 0 लेस देन टी लेस देन 3, ये गिवन है, ये डिफाइन किया हुआ है। और ई टू द पावर द और वी कैन राइट 0, ताले कितना है सो इट बिकम्स टी ग्रेटर देन 3, टी ग्रेटर देन 3, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है। इसको मैं किस तरह से लिखेंगे देखो इसको, ये फाइंड देन फाइंड लैप्लास ऑफ, देन फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, देन फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अभी देखो पहले व्हाट इज द सॉल्यूशन इन दिस केस, पहले मुझे क्या करना है यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करके इस फंक्शन को डिफाइन कर लेना है। ताले एफ ऑफ टी को मैं क्या लिखेंगे एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, इस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे एफ ऑफ टी इक्वल्स टू। अगर इस तरह का फंक्शन रहता तब मैं कैसे लिखता था, तब पहले एफ वन टी होगा, सपोज एफ वन टी ई टू द पावर द माइनस टी, पहले ई टू द पावर द टी, ई टू द पावर द माइनस टी प्लस ऑफ एफ वन टी होगा प्लस, देखो यहाँ पे टी लेस देन 3 टी ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा। ताले एफ टू कितना है 0, ताले एफ टू हो गया मेरा 0, और एफ वन कितना है ई टू द पावर द माइनस टी, ई टू द पावर द माइनस टी, यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी माइनस ऑफ 3 हो गया, यू ऑफ टी माइनस 3, ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया है। तो इसको क्या फॉर्मूला यूज किया हूँ, अगर सिंस अगर इस तरह का फंक्शन लिखा रहता एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, हियर आई हैव रिटन एफ वन टी, सो यहाँ पे ये गिवन है, ये वाला टर्म गिवन है, मैंने एक एज्यूम कर लिया 0 लेस देन टी लेस देन ए, और एफ टू टी क्या होता है एफ टू टी अगर टी ग्रेटर देन ऑफ ए। ताले एफ टू किस तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करके लिखा जाता है, ताले एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इस तरह से लिखा जाता है एफ वन टी प्लस ऑफ एफ टू टी माइनस एफ वन टी, एफ टू टी माइनस एफ वन टी इंटू कितना होगा यूनिट स्टेप फंक्शन टी लेस देन ए टी ग्रेटर देन ए, टी लेस देन ए टी ग्रेटर देन ए, यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया यहाँ पे, ये फॉर्मूला मैंने वहाँ पे यूज कर दिया।
तो इसको क्या लिखेंगे अभी, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू दिस पार्ट होगा, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू दिस पार्ट होगा टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स. सो कैन आई राइट टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स. सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, तो ये लैप्लास ले लेंगे. लैप्लास ऑफ ई टू द पावर द माइनस टी कितना होता है, तो इसको मैं लिख दें लैप्लास ऑफ ई टू द पावर द माइनस टी. ऑल ऑफ यू नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर. पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. माइनस ऑफ लैप्लास ऑफ ई टू द पावर द माइनस टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ थ्री, यू ऑफ टी माइनस ऑफ थ्री. देखो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस ई टू द पावर द माइनस टी इंटू दिस टर्म आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया हूँ. तो ये वाला का वैल्यू तो पता है मुझे, ये वाला का वैल्यू कितना है और इसका वैल्यू मैं फाइंड कर लेंगे तो डायरेक्ट उसका आंसर लिख देंगे. तो इसके बाद क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे फाइंड कर लेना है ए वाला का वैल्यू कितना होगा. ए वाला का वैल्यू आ जाएगा मुझे 1/s प्लस ऑफ 1/s प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ, तो ये वाला वैल्यू में फाइंड करेंगे लैप्लास ऑफ ई टू द पावर द माइनस टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ थ्री. अभी बाई सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देंगे. वी नो दैट बाई सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, बाई सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, बाई सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी माइनस ऑफ ए, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, ई टू द पावर द माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस. कैन आई राइट दिस लाइन. तो अभी देखो ये वाला टर्म यहाँ पे कौन सा टर्म है, नाउ कौन सा टर्म है, लैप्लास ऑफ, मुझे कौन सा टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, ये वाला फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है. लैप्लास ऑफ ई टू द पावर द माइनस टी, ई टू पावर द माइनस टी यू ऑफ टी माइनस ऑफ थ्री, यू ऑफ टी माइनस ऑफ थ्री. यहाँ पे देखो पूरा अच्छा से ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा. यू ऑफ टी माइनस है, यू ऑफ टी माइनस थ्री, पहले ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू मेरा 3 है, ए का वैल्यू 3 है. यू ऑफ टी माइनस है, यू ऑफ टी माइनस 3. देखो पहले ये दोनों को कंपेयर करो और एफ ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू दिस टर्म है. देयरफॉर व्हाट इज एफ ऑफ टी माइनस ए, एफ ऑफ टी माइनस ए, इसको कंपेयर करो, दिस टर्म इक्वल्स टू ई टू द पावर द माइनस टी. पहले ई टू द पावर द माइनस टी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. यहाँ पे देखो टी माइनस ए है, मेरा काम क्या है, यहाँ पे भी टी माइनस ए लेके आना है. पहले ई टू द पावर द माइनस ऑफ, कैन आई राइट टी माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ ए. कैन आई राइट दिस लाइन. देखो अभी पहले माइनस ए प्लस ए कैंसिल्ड हो जाएगा, देखो माइनस टी रह जाएगा, टी माइनस ए प्लस ऑफ ए है, देखो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, पहले ई टू द पावर द माइनस टी आ जाएगा. तो अभी मुझे क्या करना है, एफ टी कैलकुलेट करना है, मुझे यहाँ पे एफ ऑफ एस चाहिए. पहले लैप्लास ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी आ जाएगा ई टू द पावर द माइनस ऑफ टी. लिख सकता हूँ ये वाला टर्म को माइनस टी, तो और डायरेक्टली मैं टी माइनस ए का जगह टी लिखा हूँ. तो देखो माइनस से प्लस है माइनस, पहले माइनस ऑफ ए, तो इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले कैन आई राइट ई टू द पावर द माइनस ए इंटू ई टू द पावर द माइनस टी. लिख सकता हूँ इसको. पावर सभी टाइम ऐड होता है. यहाँ देखो टी माइनस ए जगह टी कर देंगे, टी माइनस ए टी प्लस ए आएगा, पहले माइनस फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले ई टू द पावर द माइनस टी और इधर ई टू द पावर माइनस ऑफ ए आ जाएगा. तो इसको मैं ब्रेक कर लिया हूँ. क्यों ब्रेक किया, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये वाला टर्म का मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है. तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ई टू द पावर द माइनस ए इंटू लैप्लास ऑफ ई टू द पावर द माइनस टी. So can I write e to the minus a? What is a? A becomes 3. So e to the power minus 3. तो e to the power Laplace of e to the minus t ये कितना होता है 1/s plus 1. Since all of you know Laplace of e to the power minus a t कितना होता है 1/s plus a. ये फॉर्मूला यूज कर दिया मैं. चलिए ये वाला रिजल्ट आ गया. तो ये वाला रिजल्ट मुझे कहाँ बिठाना है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में. तो यहाँ पे मैं बिठा देंगे ये वाला प्रॉब्लम में क्या आ जाएगा तब. Therefore Laplace of e to the power the minus t u of t minus of 3, u of t minus of 3 ये क्या है e to the power the minus t और u of t minus 3. तो फाइनली कितना आएगा e to the power the minus as,
कैन आई राइट ई टू द पावर द माइनस एस, ए का वैल्यू कितना है 3 है, ई टू द पावर द माइनस एस 3s इंटू एफ ऑफ एस, व्हाट इज एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस इट बिकम दिस पार्ट, सो कैन आई राइट ई टू द पावर द माइनस 3 इंटू 1 बाई एस प्लस 1, 1 बाई एस प्लस 1, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा मेरा। कैन आई राइट दिस लाइन, ये वाला वैल्यू आ गया तो इसको वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देंगे। सो डू द नंबरिंग, सपोज दिस इज 1, सो फ्रॉम 1 देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिजल्ट, सो कैन आई राइट फ्रॉम 1 कैन आई राइट फ्रॉम 1 व्हाट इज द आंसर, लैप्लास ऑफ, ये वाला टर्म लिखेंगे फ्रॉम 1, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म है 1 बाई एस प्लस 1, 1 बाई एस प्लस 1 माइनस है, माइनस लिख देता हूँ। उसके बाद ये वाला टर्म का वैल्यू ये यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ कितना है, ई टू द पावर द माइनस 3s माइनस 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर द कैन आई राइट माइनस 3 ऑफ, कैन आई टेक द कॉमन एस प्लस ऑफ 1 इंटू कितना आएगा होल डिवाइडेड बाई एस प्लस ऑफ 1। देखो यहाँ पे चेक कर लो, 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1 था, ये वाला टर्म को मैं ऐड कर दिया हूँ, 3 कॉमन ले लिया हूँ, पहले एस प्लस 1 आ जाएगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर और दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। So this is all about today's video. I hope you enjoyed the session and like the tricks that I have shared you in this video. So don't forget to share among your friends and don't forget to like, share and subscribe button and write whatever you need in the comment section, because if you do that I will keep on working hard for all of you guys. Thank you so much. Take care. Bye bye.